ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ڈھولک کی تھاپ پر گلے پھاڑ پھاڑ کر ودائی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ لڑکیوں کا بس نہیں چل رہا تھا کس طرح اپنے سارے ارمان پورے کر لے۔ کوئی ہاتھوں اور پیروں پر مہندی سے ڈیزائن بنا رہی تھی تو کوئی اپٹن کی مالش کر رہی تھی۔ کچھ خواتین دوپٹوں پر گوٹا کناری لگا رہی تھیں۔ شادی شدہ خواتین اپنی جوانی کے قصے سنا کر سب کو ہنسا رہی تھی۔ ہاجرہ ان سب رونقوں سے بے خبر اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ ایک 12 سال کی بچی کی سمجھ سے یہ سب بالا تر تھا۔ اس کا بس چلتا تو بھاگ کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولتی، مگر دادی ماں نے اسے سمجھا سمجھا کر بٹھایا تھا، بیٹی آج تیری شادی ہے، اپنی جگہ سے ہلنا مت، کوئی شرارت بھی نہ کرنا، دوپٹہ سر سے اترنے نہ پائے۔ ہاجرہ نے حیران ہو کر سوچا، میری شادی کس سے اور کیوں؟ ابھی کل ہی تو ابا کی شادی تھی اور وہ میرے لیے ایک نئی امی لائے تھے۔ ہاجرہ کے باپ نے بیٹی کو لے جا کر دلہن کے پاس بٹھایا تھا اور کہا تھا، بیٹی ہاجرہ اپنی امی کو سلام کرو۔ وہ بچپن سے فرما بردار تھی۔ اس نے کوئی سوال کیے بنا باپ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے کمرے میں جا کر اپنی سہیلی کو ساری باتیں بتائیں۔ وہی اس کی رازدار سہیلی تھی۔ ہاجرہ کی ماں اس کی وفات کے 4 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ گھر میں صرف وہ اپنی دادی کے ساتھ ہوتی۔ باپ روزی کمانے صبح نکلتا تو رات گئے واپس آتا۔ گھر کی فضا کئی برسوں سے غمگین چلی آ رہی تھی۔ اب تو لگتا تھا در و دیوار نے بھی اداسی کی چادر اوڑھ لی ہے۔ کتنا عرصہ ہوا باپ بیٹی کو اپنے آپ کو باور کراتے ہوئے۔ ہاجرہ کی شادی اس کی مرضی سے نہیں بلکہ اس کے باپ کے جرم کی پاداش میں کی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا تک نہیں تھا کہ مجھے باپ کے جرم کے بدلے میں غیر لوگوں میں بیاہ دیا جائے گا۔ باپ نے وقت رخصتی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی تم ہمارے خاندان کی عزت ہو، اب وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا۔ دادی نے ماتھا چوم کر کہا، جاؤ میری بچی، ہماری روایات کا ہر سبق اپنی کتاب زندگی میں سمیٹ کر لے جاؤ۔ اور پھر وہ اپنے سسرال چلی گئی، جہاں اس نے خود کو اپنے ساس سسر کی خدمت میں گم کر لیا۔ ہاجرہ جو بچپن سے تنہا تھی اب اور تنہا ہو گئی۔ میکے میں کم از کم اس کی تنہائیوں کے ساتھی اس کی دادی تھی جو اسے کہانیاں سناتی تھی۔ ہاجرہ کی امی جو بہت پیاری اور نیک تھیں، اسی لیے انہوں نے پریوں کے دیس میں بسیرا کیا تھا۔ باپ بھی شفقت سے بات کر لیتا تھا۔ شام سے پہلے اسے چھت پر ٹہلنا، ڈوبتے سورج کو دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اور کرتی بھی کیا، باپ نے تو پلٹ کر بیٹی کی خیریت بھی نہ پوچھی۔ سوتیلی ماں اکثر آتی، ہفتوں گزار کر واپس چلی جاتی۔ شیر خان سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ہاجرہ کو اپنے بھائیوں سے بہت محبت تھی، مگر ساس اور نند بچوں کو ہاجرہ سے دور رکھتی۔ یہ عمر کا وہ دور تھا جب انسان بے وجہ ہنستا ہے، مگر اسے تو اپنوں کی سرد مہری نے اندر سے ہی مار ڈالا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تو شاذر و ناظر ہی آتی تھی۔ ہاجرہ جب اپنی ہم عمر لڑکیوں کو بنتے سنورتے اور اپنے شوہروں کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھتی تو اس کے بھی جذبات مچلنے لگتے۔ ماؤں کی گود میں ہمکتے مچلتے پیارے پیارے بچوں کو دیکھ کر اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھتی۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے سسرال میں ایک بہو یا بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مجرم کی حیثیت سے لایا گیا تھا۔ یہ بھی ایک عام سا دن تھا جب کسی نے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ یا اللہ، اس وقت کون آ گیا؟ ہمارے گھر تو کوئی عام حالات میں اس وقت نہیں آتا، پھر یہ کون؟ خود کلامی کرتی ہوئی ہاجرہ اپنی جگہ سے اٹھی، دروازہ کھولا تو ایک نوجوان اندر لڑکھڑاتا ہوا آیا اور گر پڑا۔ ہاجرہ گھبرا گئی، جلدی سے جا کر اسے سیدھا کیا۔ وہ بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ سردی کے حساب سے کپڑے بھی مکمل نہیں تھے۔ تیز بخار کی وجہ سے اس پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ ہاجرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اتنی دیر میں اس کے ساس سسر وہاں لاٹھی ٹیکتے آ گئے۔ سسر نے صورتحال بھانپ کر اجنبی کو گھسیٹ کر آگ کے قریب کیا۔ ہاجرہ نے گھر میں موجود سارے لحاف اس پر ڈال دیے۔ ساس اس کے سرہانے بیٹھ کر گرم دودھ کے چمچے اس کے منہ میں ڈالتی رہیں۔
सुबह तक वो अजनबी की हर मुमकिन तीमारदारी करते रहे। दोपहर तक उसकी हालत संभली और उसने आंखें खोल दी तो सबकी जान में जान आई। जब अजनबी कुछ बात करने के काबिल हुआ तो उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी देखने आया था। उनकी तवक्के के खिलाफ मौसम ज़्यादा खराब हो गया। वापसी के सफ़र में वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया। पहाड़ों में 3 दिन भटकने के बाद न जाने किस तरह इनके दरवाजे तक आन पहुंचा। भूख प्यास सर्दी ने उसे आधमुहा कर दिया। अल्लाह को उसकी ज़िंदगी बचानी थी, सो वो उनके दरवाजे तक आन पहुंचा। अजनबी ने उनका शुक्रिया अदा किया। अरे बेटा, तुम मेहमान हो, तुम्हारी खिदमत तो हमारा फ़र्ज़ था, शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं। ससुर ने कहा तो बोला, नहीं अंकल, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर बेटा, तुम जाओगे कहाँ? सारे रास्ते बंद हैं, बर्फबारी जब तक रुक न जाए तुम कहीं नहीं जा सकते। यहाँ सदियों से रहने वाले अपने घरों तक महदूद हो जाते हैं, तुम तो पहली दफ़े आए हो। इमरान ये सुनकर परेशान हुआ, बोला, मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। ससुर ने कहा, जान से ज़्यादा अहम कोई बात नहीं है। इमरान के सामने अब कोई रास्ता नहीं था। शुरू शुरू में तो हाजरा ने इमरान से पर्दा किया, मगर एक घर में रहकर उनका अक्सर ही आमना सामना हो जाता। इमरान को उनके घर बिन बुलाए मेहमान की तरह रहना पसंद नहीं था, मगर क्या करता, मजबूरी थी। उसने कोशिश की कि घर वालों की किसी तरह मदद करे। मवेशियों को चारा डालना, घर के सामने रोज के रोज बर्फ हटाना, लकड़ी काट कर जलाना। यूं तो हाजरा ने सर्दियां शुरू होने से पहले काफी ज्यादा लकड़ियां और भूसा जमा कर लिया था, फिर भी आग जलाने से पहले उनके छोटे छोटे टुकड़े करना पड़ते। लकड़ी के दस्ते को पकड़ने से हाजरा के हाथों में छाले पड़ गए थे। इमरान लकड़ी काटने की जिम्मेदारी भी ले चुका था, अगरचे शहरी लड़का लकड़ियां कहाँ काट सकता था। हाजरा अपनी जिंदगी में शायद कभी इतना नहीं हंसी थी जितना उसने इमरान को लकड़ी काटते देखकर हंसना शुरू किया। वो था भी तो हर वक्त हंसने हंसाने वाला। घर में उसके आने से रौनक सी हो गई। बुढ़े बुढ़िया भी अपनी बीमारी भूलकर गोया फिर से जवान हो गए। हाजरा ने अपनी इकलौती सहेली को फिर से अपना राजदार बना लिया। अपनी गुड़िया को अपने साथ लिटाकर अपना हाले दिल सुनाया। उसे बताया कि यहाँ एक शहरी बाबू आया है जिसकी बातें उसे बहुत अच्छी लगती हैं। इमरान का नाम लेते हुए उसके गाल अब गुल्लार होने लगे थे, दिल में मुख्तलिफ जज्बात जन्म ले रहे थे। एक रात इसी तरह वो खुद कलामी में मसरूफ हो चुकी थी, बल्कि अपनी सहेली गुड़िया से बातें कर रही थी, इस बात से बेखबर कि इमरान खिड़की के बाहर उसकी सारी बातें सुन रहा है। इमरान को पहले दिन से ही वो मासूम, सादा लू, पुरकशिश और कमकोह लड़की बहुत अच्छी लगी थी। जब किसी सवाल पर वो अपनी झील सी आंखें उठाकर देखती तो इमरान की गोया गर्दिशे कायनात रुक जाती, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती। वो इमरान से ज़रूरतन ही बात करती, जहाँ सामना नागज़ीर हो दामन बचाकर निकल जाती थी। तन्हाई में कभी कभी इंसान अपने दिल की सारी बातें कर जाता है, और बस ऐसी ही एक गलती इन दोनों से भी अनजाने में सरजद हो गई। माँ बाप की मोहब्बतों को तरसी, मोहब्बतों की प्यासी, हर रिश्ते में अपना ताल्लुक ढूंढती। हाजरा नादानिस्तगी में एक गुनाह कर बैठी। हाँ, मोहब्बत का गुनाह। वो हमेशा से तन्हा थी, सहारा चाहती थी, एक ऐसा साथी जो दुख सुख का सांझी हो। इमरान में उसे वो सब मिल गया जिसमें वो एक अरसे से मुतलाशी थी। उसे देख देख कर वो जीती। वो जो कहता इसे हिफ्स हो जाता, जिन नज़रों से वो उसे चोरी चोरी देखता था, उसे कहाँ भूलती थी वो नज़रें, वो बातें। यूं चंद लम्हों के लिए होती, मगर हाजरा इनके हिसार में घिरी रहती। अब अगर कभी वो उसे नज़रअंदाज कर देता तो उसकी दुनिया उजड़ जाती, नींद रूठ जाती, आंखें आंसू बहाने लगती। फिर वो अपने उस जौहर को याद करती जिसके साथ उसे ज़बरदस्ती बांधा गया था। हालांकि याद करने को कुछ नहीं था सिवाय इसके कि वो उसका घर वाला है जिसने बीवी को बीवी समझा ही नहीं। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कातिल की बेटी को बहलाया। फिर हाजरा के दिल को कुछ होने लगता। उसे याद आता कि ये बंधन तो बहुत खोखला है, और फिर ये इश्क जो उसके रुखसारों पर लाली बनकर चमकता था। और फिर एक दिन वो हुआ जो उसने सोचा नहीं था। एक जोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और हमीद खान अंदर आ गया। वालिदैन पर तो शादी मर किसी कैफियत तारी हो गई थी।
बूढ़े वालिदैन कभी रोते कभी उसे सीने से लगाते। खुद हाजरा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फितरी शर्म आड़े आ रही थी। किस तरह वो अपने दिल का हाल हमीद खान को बताए, इतने बरसों में जो हुआ उसे बताए, उससे शिकायत करे, या फिर वो जल्दी जल्दी उसके लिए खाना बनाने लगी। हमीद अपने माँ बाप से कहने लगा, बाबा और अम्मा जान, मैं एक दिन के लिए आया हूँ, कल वापस चला जाऊंगा। नौकरी की वजह से ज्यादा छुट्टी नहीं मिली। गम की शिद्दत से हाजरा को लगा जैसे छुरी मुर्गी पर नहीं उसकी गर्दन पर चली गई हो। इतने इंतजार के बाद सिर्फ एक रात, आंसू को तो बहाना चाहिए। कोई मौसम हो दिल का तो एक ही मौसम होता है। फिर एक बार फिर हमीद खान की गिरफ्तार आवाज गूंजी, ये शहरी बाबू कौन है? बाप ने मुख्तसरन बताया तो अगला सवाल पहले से भी सख्त था, यहाँ अजनबी को क्यों इतने अरसे से घर में रखा है? जहाँ बहू बेटियां हों वहाँ नामहरम को पनाह नहीं दी जाती। आप समझदार हैं, रखने से पहले सोचा तो होता बाबा। वालिदैन ने उसे समझाया कि किन हालात में वो उन तक पहुंचा था। एक बीमार इंसान को वो कैसे मरने के लिए छोड़ देते। फिर हमीद खान ने हुक्म सादिर कर दिया कि जैसे ही रास्ता साफ होगा इसे वापस यहाँ से भेज दिया जाए। बस बस बहुत हो चुका, आखिर मैं भी तो आया हूँ। कल सुबह से वो मेरे साथ यहाँ से रवाना होगा, इसे बता देना कि तैयार रहे। उखड़े लहजे में कहता वो चल दिया था। इमरान और हाजरा ने सारी बातें सुन ली थी। इत्तेफाक से इमरान हाजरा के करीब ही खड़ा था। उसने हिम्मत जमा करके चुपके से कहा, कल सुबह तो मुझे वापस जाना है, फिर जिंदगी रहे न रहे, रात किसी वक्त आकर मेरी इल्तिजा समझाओ। तुमने कभी बात करने का मौका नहीं दिया, अपनी कही न मेरी सुनी। मैं बाहर दरख्तों के पास इंतजार करूंगा, सिर्फ 15 मिनट से ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। ये कहकर इमरान भी तेजी से अपने हुजरे की तरफ चल दिया। शाम वसल भी अजीब रंग लिए हुए उतरी। ढलते सूरज की मध्यम शौ ने जरा तिरछे अंदाज में रुख बदला। बुलंद पहाड़ों के ऊपर से दिलकश अंदाज के जाविये बखेरते हुए शाम मुसाफात पर उतर आई थी। हाजरा के लिए ये कड़ी आजमाइश थी। एक तरफ नाम निहाद शौहर जिसने कभी उसे कोई हैसियत ही नहीं दी थी, दूसरी तरफ एक अजनबी जो गैर था मगर कमगुसार था। रात के खाने के बाद हमीद खान वालिदैन के साथ सोने के लिए लेट गया। बात करना तो दूर की बात, उसने हाजरा को नजर उठाकर भी नहीं देखा। इस तरह नजरअंदाज किए जाता कि हाजरा की अना पर ताजियाने से कम नहीं था, जैसे उसकी कोई हैसियत ही न हो। आज की रात न जाने कितनी तन्हा रातों के बाद आई थी। आज की रात अगर हमीद खान उसे एक बीवी की जगह दे देता तो वो उस रात की सरशारी में सारी जिंदगी सब्र शुक्र से गुजार देती। मगर हमीद खान सर्टमोहरी ने गोया उसकी रग रग में गुस्सा और इंतकाम भर दिया था। आधी रात के करीब वो खामोशी से चारपाई से उतरी, चादर से अपने आप को लपेटा, नंगे पांव अनजानी मंजिल की तरफ चल पड़ी। दिल में अनजाने वसवसों खौफ को छुपाए जिंदगी की पहली गलती करने। उधर इमरान पहले से उसका मुंतजिर था। ठीक उसी वक्त हमीद खान के बाप को दमे का दौरा पड़ा। किसी तरह सांस काबू में नहीं आ रही थी। सास ने हाजरा को पानी लाने के लिए पुकारा। कोई जवाब न पाकर हमीद खान ने खुद उठकर बाप को पानी पिलाया, फिर हाजरा को तलाश करना शुरू किया। कहीं रात को पानी भरने तो नहीं चली गई? मगर इतनी रात को इसे पानी भरने के लिए जाने की जरूरत क्या थी? सास ने चिड़चिड़ा कर जवाब दिया, फिर वो जरूर उस अजनबी से मिलने गई होगी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, हाजरा पानी का गिलास लिए कमरे में दाखिल हुई। सब उसे देखकर हैरान रह गए थे। चंद लम्हों ने कैसे उसकी जिंदगी बचाई थी, ये खुदा का कोई मुआवजा है। उसने अपने शौहर से कुछ न कहा, चुपके से अपने ससुर की तरफ बढ़ गई थी। मगर ये वही जानती थी कि वो कितना बड़ा फैसला कर आई थी। इमरान से आखिरी मुलाकात भी अधूरी रह गई थी। उसने अपने शौहर का मान रख लिया था। शायद ये निकाह के रिश्ते की बरकत थी कि वो चाह कर भी अपना आप एक अजनबी को नहीं सौंप सकी, और बर वक्त फैसले ने उसे जिंदगी में बहुत बड़े अजाब से बचा लिया। अगर आपको आज का ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के मज़ीद किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।